قول الترمذی حسن غریب، امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول حسن غریب کہنا. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اصطلاحات میں اس سے پہلے حسن صحیح آیا تھا. گزشتہ سبق ہمارا تھا حسن صحیح، اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے. آج کا ہمارا سبق ہے کہ جب وہ حسن غریب کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے. وقد انکر بعضهم علی الامام الترمذی جمعه بین الحسن والغریب، اور بعض لوگوں نے تنقید کی ہے، انکار کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ پر ان کا حسن اور غریب کو جمع کرنا. یعنی کسی ایک حدیث کو وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب. تو ایک ہی حدیث کو وہ جو حسن غریب کہتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں ایک ہی حدیث کے بارے میں حکم جو لگاتے ہیں کہ یہ حسن غریب ہے، تو بعض لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے. اذ الحسن عنده ما روی من غیر وجہ، اس لیے کہ حسن حدیث ان کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو دوسری سند سے روایت کی گئی ہو. اس لیے کہ حسن ان کے نزدیک وہ حدیث ہے جو دوسری سند سے بھی روایت کی گئی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی روایت کی گئی ہو. یہ تین شرطیں وہ لگاتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن حدیث وہ ہے جو کہ کسی دوسری سند سے روایت کی گئی ہو، والغریب ما تفرد به راو واحد، اور غریب وہ ہے جسے کسی ایک راوی نے روایت کیا ہو. جب حسن وہ ہے جو کسی دوسری سند سے بھی آئی ہو، اور غریب وہ ہے جو کسی ایک ہی سند سے آئی ہے جسے ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے، تو پھر ایک ہی حدیث پر دو حکم کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے؟ تو اس لیے بعض علماء نے تنقید کی ہے. تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ وقد اجاب الحافظ ابن حجر ما ملخصه، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، بما ملخصه، اس کا خلاصہ یہ ہے ان اصطلاح الترمذی ھذا ينصب ويحمل على كل حدیث وصفه الترمذی بالحسن فقط، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کی جو تعریف کی ہے وہ محمول کی جائے گی ہر اس حدیث پر جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حسن کہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کی تعریف یہ کی کہ وہ حدیث جو کسی دوسری سند سے بھی آئی ہو، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حسن کی جو تعریف ہے وہ اسی حدیث پر محمول کی جائے گی جس کو وہ صرف حسن کہتے ہیں. حسن غریب ان پر ان کی یہ تعریف ہم محمول نہیں کریں گے. امام ترمذی نے وہاں جس حدیث کو جو ہے کہا کہ ھذا حدیث حسن، تو ہم ان کی یہ تعریف اس پر محمول کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث ان کے نزدیک کسی دوسرے سند سے بھی آئی ہے. ٹھیک ہے. ان اصطلاح ترمذی ھذا، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اصطلاح ينصب ويحمل، محمول کی جائے گی، ڈالی جائے گی، محمول کی جائے گی، مطلب ہے کہ محمول کی جائے گی علی کل حدیث، ہر اس حدیث پر وصفہ الترمذی، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بالحسن فقط، جس کی صفت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حسن کہا ہے. یعنی ہر اس حدیث پر جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حسن کہا ہے، تو اسی حدیث پر ہم ان کی اس تعریف کو جو ہے ہم محمول کریں گے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث میں جب حسن اور غریب کہا ہے نا، تو اس پر یہ تعریف ہم محمول نہیں کریں گے. ہم جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حسن کی جو تعریف ہے وہ صرف اسی حدیث پر محمول کریں گے جسے انہوں نے صرف حسن کہا ہے. لیکن پھر جس حدیث کو انہوں نے حسن غریب کہا ہے اس کو ہم کیا چیز، اس میں کیا مراد لیں گے، تو وہ آگے بیان کر رہے ہیں. یہاں تک تو واضح ہے نا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن الغریب کہنا، اس میں ہم لوگ جو ان کی یہ تعریف کو نہیں لائیں گے، بلکہ یہ تعریف جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ حسن جو ہے وہ حدیث ہے جو کسی دوسرے طریق سے بھی آئی ہو، وہ اسی وقت ہم اس پر محمول کریں گے جبکہ وہ صرف حسن کہتے ہوں. جہاں وہ صرف حسن کہتے ہیں تو کہیں گے کہ ہاں ان کے حساب سے جو حسن ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَا وَصَفُوا بِالْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ مَعًا، اب رہی وہ حدیثیں جس کو انہوں نے حسن اور غریب ایک ہی ساتھ کہا ہے، فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَسَنُ عَلَى اصطلاح الجمہور، تو اس سے مراد جمہور کی اصطلاح کا حسن ہے. ولا منافات بین الحسن والغریبی، اس صورت میں حسن اور غریب میں کوئی تضاد نہیں ہے. اعلیٰ اصطلاحہم، جمہور کی اصطلاح کے مطابق، کیونکہ جمہور کے نزدیک حسن حدیث کے لیے کسی اور سند کا ہونا شرط نہیں ہے.
इमाम तिरमिजी की शर्त थी वो उनके पास हसन के लिए उन्होंने कहा कि वो किसी और सनद से भी बयान की गई हो, लेकिन जुमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक हसन के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, हसन के रावी और सही के रावी में फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हिफ्ज में थोड़ा सा कम होते हैं बनिस्बत सही के, बाकी वो एक ही सनद से अगर बयान की गई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके रावी जो है आदिल होते हैं और फिर जो है सारी चीजें होती है उसमें, ठीक है ना। तो जुमहूर की इस्तिलाह में हसन और गरीब किसी एक हदीस को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें कोई तजाद नहीं है, लेकिन उनकी इस्तिलाह के मुताबिक तजाद हो सकता था, इसलिए यहां उन्होंने कहा कि जब वो सिर्फ हसन कहते हैं तो ये उनकी इस्तिलाह के मुताबिक हसन है कि वो हदीस किसी और जरिए से भी आई हुई है, लेकिन जब वो हसन और गरीब कहते हैं तो ये जुमहूर की इस्तिलाह के मुताबिक कहते हैं, वो जुमहूर की इस्तिलाह में, और जुमहूर की इस्तिलाह के मुताबिक हसन और गरीब एक हदीस में जमा हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी और सनद के साथ आना शर्त नहीं है। वक़ाल शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लज़ीना ताअनु अला तिरमिज़ी, जिन्होंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर ताअन किया या तनक़ीद की, लम यफ़हमू मुरादहू, तो उन्होंने उनकी मुराद को नहीं समझा, फी कसीरिन मिम्मा क़ाला, उनकी बहुत सी बातों के सिलसिले में, उनकी बहुत सी बातों के मामले में उन्होंने उनकी मुराद को नहीं समझा। फ़इन्न अहलल हदीस क़द यक़ूलून, इसलिए कि हदीस के अइम्मा कहते हैं हाज़ल हदीसु गरीबुन, कि ये हदीस गरीब है, ये हदीस गरीब है, गरीब वो हदीस जो किसी एक ही सनद से आई है, ठीक है। तो बहुत से मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये हदीस गरीब है, आई मिन हाज़ल वजही, यानी इस सनद के साथ, इस सनद के साथ जो सनद के साथ इस हदीस को वहां बयान किए हुए हैं। वक़द युसर्रिहून, और वो सराहत करते हैं बिज़ालिका, इसकी, फ़यकूनुल हदीस इंदहुम सहीहन, वो इस बात की सराहत करते हैं कि ये हदीस यहाँ गरीब है, लेकिन फ़यकूनुल हदीस इंदहुम सहीहन मारूफन, लेकिन वो हदीस उनके पास सही होती है, मारूफ होती है, मिन तरीक़िन, एक दूसरे सनद से, वो हदीस जिस सनद का वो वहां जिक्र करते हैं उसके बारे में कहते हैं कि वो गरीब है, लेकिन वो हदीस लेकिन एक और सनद है उसकी जिससे जो है वो हदीस हसन सही हो जाती है, मारूफ होती है मिन तरीक़िन, दूसरी सनद से, फ़इज़ा रुविया मिन तरीक़िन आखरा कान गरीबन मिन ज़ालिकल वजही, और वो हदीस जब किसी दूसरी सनद से बयान की जाए तो फिर वो उस सनद से गरीब है। मिसाल के तौर पर हदीस की दो सनदें हैं, एक सनद जो उन्होंने वह बयान की वो उस सनद के साथ वो हदीस गरीब है, तो इसलिए वो कह देते हैं कि ये हदीस गरीब है बोलकर, हालांकि वो सराहत करते हैं कि ये हदीस फिर दूसरी सनद से गरीब नहीं है बल्कि वो दूसरी सनद से भी आई है, और इस लिहाज से वो हदीस गरीब के दर्जे नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की बात वहां खत्म हो गई, उन्होंने गरीब का हुक्म लगा दिया, और वो जुमहूर की इस्तिलाह के मुताबिक है, और जुमहूर की इस्तिलाह के मुताबिक है, क्योंकि जुमहूर की इस्तिलाह के मुताबिक ये है कि कोई हदीस हसन और गरीब एक साथ हो सकते हैं, यानी हदीस की सनद एक ही है लेकिन वो हदीस की रावियों के एतबार से वो हदीस हसन के दर्जे को पहुंची हुई है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब यहाँ एक और मजीद बात का इजाफा कर रहे हैं इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कौल, वो ये कह रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर जिन लोगों ने तान किया है वो हकीकत में उनकी मुराद को नहीं समझे, इसलिए कि अहले इल्म भी उनके अलावा दूसरे भी वो किसी सनद के बारे में कहते हैं कि वो गरीब है, क्योंकि जिस सनद का वहां उन्होंने जिक्र किया है उस सनद से वो गरीब है, लेकिन वो जो हदीस है किसी दूसरी सनद से आई है और उससे वो सही है, या फिर ये कि वो उस हदीस का जो है मतन सही है, सनद जो है उसकी गरीब है, ये भी मुमकिन है। तो इसीलिए वो कहते हैं, देखिए हाज़ल हदीस गरीबुन, अहले हदीस कहते हैं कि यह हदीस गरीब है, ऐ मिन हाज़ल वजही, यानी इस सनद से, वक़द युसर्रिहून बिज़ालिक, वो इस बात की सराहत करते हैं, फ़यकूनु हदीस इंदहुम सहीहन, और हदीस तो उनके नजदीक सही होती है, मारूफन मारूफ होती है, मिन तरीक़िन, एक दूसरी सनद से, फ़इज़ा रुविया मिन तरीक़िन आखरा, जब वो किसी दूसरी सनद से बयान की गई तो काना गरीबन मिन ज़ालिकल वजह, तो गरीब होगी उस सनद के एतबार से जिसका उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन दूसरी सनद के एतबार से क्या है वो इन कानन मतनु सहीहन मारूफन, वो हदीस जो है उस सनद के एतबार से अगरचे के गरीब है क्योंकि उसके रावी एक हैं, लेकिन मतन जो है सही है, मारूफ है। तिरमिज़ी जो इज़ा क़ाल, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब कहे हसनुन गरीबुन की हदीस हसन गरीब है, क़द यानी बिज़ालिका अन्नहु गरीबुन मिन ज़ालिकल वजह, तो वो उससे मुराद लेते हैं कि वो उस सनद से गरीब है, उस सनद से वो गरीब है, लाकिन अल मतन,
लहू शवाहिद, लेकिन मतन के शवाहिद हैं, यानी मतन के एतबार से उसके दूसरे सनद भी हैं, उसके दूसरे शवाहिद भी हैं। वसारा बिहा मिन जुमलतिल हसन, और इस तरह ये हसन के दर्जे को पहुंच गई, इस तरह वो हसन में शुमार हो गई। यानी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब किसी हदीस को हसन और गरीबन कहते हैं तो वो गरीब होगी सनद के एतबार से, हसन होगी किसके एतबार से? मतन के एतबार से। खुलासा ये है कि जब वो हसन और गरीबन कहते हैं तो वो मतन के एतबार से हसन है और सनद के एतबार से गरीब है, क्योंकि मतन के और भी शवाहिद हैं, सनद के एतबार से वो गरीब है, एक ही रावी से रिवायत की गई है, वो तमाम तबकात में एक ही रावी है सनद के एतबार से, लेकिन मतन के एतबार से वो क्या है? शवाहिद है उसके, दूसरे अहादीस में भी उसके मतन आए हुए हैं। कहाँ है? अन्नो गरीबुन मिन ज़ालिकल वज्ह, कि वो गरीब है उस सनद से, लाकिन अलमतना लहू शवाहिद, लेकिन मतन के शवाहिद हैं, यानी मतन के दूसरे भी तायद करने वाली अहादीस हैं। सारा बिहा मिन जुमलतिल हसनी, जिसकी वजह से वो हसन के जुमले को, हसन के दर्जे को पहुंच चुकी है। यानी जब चूंकि उसके मतन के शवाहिद हैं तो इसका मतलब है कि एक और सनद भी आ गई है ना। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हसन के लिए क्या होना चाहिए? दूसरी भी सनद होनी चाहिए। जब मतन के शवाहिद आ गए तो मतलब ये हुआ कि उसके मतन के और भी सनद आ गई, तो मतन के एतबार से वो हदीस क्या हो गई? हसन हो गई, लेकिन सनद के एतबार से वो गरीब। जी बिल्कुल ठीक है।